So we need to see this bill in comparison with the Nalsa judgment that existed before this bill was passed, and this bill is sort of trying to revise the Nalsa judgment. इस क्लॉज के तहत वो पूरा सपोर्ट सिस्टम जो हमने पीयर ग्रुप बनाया है वो पूरा खत्म हो जाता है, वो क्रिमिनलाइज हो जाएंगे, मतलब हम लोग क्रिमिनलाइज हो जाएंगे। इफ आई एम सपोर्टिंग माई ट्रांस फेलो और ट्रांस कली, तो आई एम बिकम अ क्रिमिनल। Okay, first of all, transgender men are not real. Non-binary people are not real. Trans women without the surgery are not real. Trans मतलब हर किसी का इन्होंने ऐसे ऐसे कर दिया कि ये भी नहीं रियल, ये भी नहीं रियल, ये भी नहीं रियल। और उसी तरीके से हम पेरियार की भी देखिए, पेरियार की जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है, किसकी बात करता है? सेल्फ रिस्पेक्ट। हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जो पर्सनैलिटी की बात नहीं करते हैं, और प्लस हु विल गेट द बेनिफिट, है ना, हु विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज द अपर कास्ट पीपल। कास्ट इन क्वेयर स्पेसेस इज अ रियलिटी, it's not a myth, it is a reality. Hello, my name is Aishwarya. I am a genderqueer independent journalist and academically trained in philosophy from University of Delhi. This conversation is brought to you in collaboration with the Periyar Screen. The aim of this conversation is primarily two things. The first is to talk about the basic issues with the new Trans Act 2026 in India. And the second is to extend the same conversation with a more critical and experiential lens. And to hold this conversation with me today, we have three guests with us. We have Katyayani. Katyayani is a Bhujan trans woman from Delhi, and she makes visual essays on gender, feminism, caste, and society with a very queer lens. The second guest we have is Yashika. Yashika is a trans woman and Dalit queer activist, currently a full-time PhD research scholar at Center for Human Rights and Duties, Punjab University, Chandigarh. Her work focuses on caste and gender and marginalization from an intersectional lens. The next guest we have is Amit Gautam. She is an anti-caste queer activist and writer. She has founded Savitribai Phule Village Library and has co-founded Dalit Queer India, which we also know as DQI. So for the questions, the first question that I have is for Katyayani. So my question revolves around the new Trans Act, which was a bill now, Act 2026. So the clause 4K of that particular act sets up a legislative definition of who a transgender person is, and then there are many points to who the transgender person could be. What do you think about this new definition that we have? And how is this legislative definition different from the previous one? And the third part of the question is, does this definition make the law and state institutionally stand in favor of the trans and non-binary community as citizens of India? Or maybe they distance themselves from the community with this definition? So we need to see this bill in comparison with the Nalsa judgment that existed before this bill was passed, and this bill is sort of trying to revise the Nalsa judgment. So now in the Nalsa judgment that like the Supreme Court passed, and there were like a lot of consultations with the trans community where like, you know, the trans community was itself involved in like, you know, the Nalsa judgment. And because see, in India, trans rights is not something that we're talking about at this point, right? Trans people have existed in India for years and years and years. So at this point when the conversation is happening, it's a conversation जो एक पहले की बातचीत पे there was a previous conversation to which this conversation is happening. So the previous conversation was something where trans people were involved in it. Supreme Court had a lot of conversations with trans people. There was a lot of like advisory committees and whatever, जो भी legal एक तरीका होता है Supreme Court का लोगों से राय लेने का. All of that happened, and according to that, Supreme Court said कि basically what will happen with the trans community is कि what they identify as, मतलब self identification जो एक चीज है कि हम जैसा खुद को identify कर रहे हैं, that is who these people are. Because trans community is a very large community, right? It's not a small community. Like inside the trans community, there are like the मतलब basically socio-cultural communities like Hijra, Kinnar, Ravni, Jogta, Nupi Manba, Nupi Manvi, and they're like endless communities, Khwaja Saram, like there's so many communities. Now in this, like then there are trans women, there are trans men, there are non-binary people. There are so many people in this, like, you know, people that we're calling trans, right? So which of these trans
are you? So this decision the Supreme Court had left on the citizens of India. Ki like whenever somebody is asking ki, oh, who are you? So are you a Kinnar person? Are you a trans woman? Are you a transgender man? Are you a Nupi Manba? Who are you? So this was left on the community. Now with this bill that has totally been scrapped, the government is like, okay, first of all, transgender men are not real, non-binary people are not real, trans women without the surgery are not real, trans मतलब हर किसी का इन्होंने ऐसे ऐसे कर दिया कि ये भी नहीं रियल, ये भी नहीं रियल, ये भी नहीं रियल. Basically what they've said कि what you're saying to us is not real, like whatever you're saying, you're not that. So now they're also saying this to a community who has basically fought for their existence. हम basically लड़े ही पूरी जिंदगी इसी चीज को लेके हैं कि हम कौन हैं, है ना, कि मतलब we fought our families, we fought like the society, we fight every day. So they are telling this community कि तुम क्या हो. हाँ, so first of all this is so illogical कि सरकार आके भाई मतलब जब हमने साड़ी पहनी है ना तो हमने सरकार से पूछ के नहीं पहनी है, हम उतारेंगे भी ना तो सरकार कोई नहीं होती मतलब कि मतलब हमारे कोई बोलने के लिए कि साड़ी ना पहनो या लड़कियों की, मतलब भाई हमने घर वालों की नहीं सुनी, हमने किसी की नहीं सुनी, तो अब हम सरकार की क्यों सुनेंगे? हम पागल हैं क्या? लाइक मतलब सरकार पागल है क्या? क्यों बता रही है? लाइक मतलब उनको ये हक किसने दिया उन लोगों को बताने का जिन्होंने आज तक किसी की नहीं सुनी? मतलब हम विद्रोहों से पैदा हुए लोग हैं, हम बचपन से करते आ रहे हैं भाई. लाइक हमने घर वालों से किया, स्कूल में किया, मतलब हर बच्चे की आप कहानी देखेंगे स्कूल में हर जगह कितनी बुलिंग फेस करते हैं. हम हमेशा से अपने लिए खड़े होते आए हैं और अब सरकार हमें बताएगी कि मतलब हम क्या पहन सकते हैं, हम क्या हैं, सरकार बताएगी. मतलब होती कौन है सरकार हमें कुछ बताने वाली? एंड अगर हम देखें तो सरकार बिल्कुल इसमें दे आर नॉट स्टैंडिंग विद द ट्रांस कम्युनिटी, बिकॉज इफ दे वुड हैव बीन स्टैंडिंग विद द ट्रांस कम्युनिटी, every trans person is saying that this bill does not support us. Like every trans person is saying that, and the government is not listening. So they don't stand with the trans community. It's like मतलब anybody who thinks कि this bill is doing किसी भी ट्रांस इंसान का भला तो इस दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ है. बिकॉज हर ट्रांस इंसान ने आके बाहर पब्लिक में बोल दिया, रोड पे बोल दिया, वीडियोज में बोल दिया, लोग रोज बोल रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है. तो मतलब government does not care about the trans community with this bill. They are literally just showing that at this point. So the next question is for Yashika. So I will draw a little bit from how the harms and the history of medicalization has worked across the globe with time. So then we have seen medicalization of disabled bodies, which I would call maybe non-normate bodies in this conversation. And now we are seeing a definition, a legislative definition of transgender people, where a medicalization is being very much imposed. तो इस तरीके से जो मेडिकलाइजेशन हुआ ट्रांस कम्युनिटी का इस एक्ट के आने के बाद, इससे टीजी कार्ड का जो एक्सेस होता है या बेसिक हेल्थ केयर का जो एक्सेस होता है या जेंडर अफर्मिंग केयर का जो एक्सेस होता है, वो इस मेडिकलाइजेशन के साथ किस तरीके से इम्पैक्ट होगा या हो रहा था, क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले तो इंडिया इज़ नॉट द वन जिसने ट्रांसनेस को मेडिकलाइजेशन के तरीके से देखा है. इससे पहले पाकिस्तान में जो ख्वाजा सीरा बिल आया था, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट वहाँ पर आया था 2018 में. उसके बाद वहाँ के जो कंजर्वेटिव जमात इस्लामी एंड पीटीआईज़ की जो जमात है, उन्होंने इसका विरोध किया था कि ट्रांसनेस को मेडिकलाइजेशन के तरीके से देखा था. वही सेम चीज़ ईरान में भी है कि ट्रांस लोगों को फोर्स किया जाता है टू डू दीज प्रोसेस. मेडिकलाइजेशन का प्रोसेस से गुजर के ही आप अपने आप को ट्रांस या ट्रांस बोल सकते हो. तो ये हिस्ट्री रही है बिकॉज सिस हेड पीपल वांट्स टू मेक ट्रांस आइडेंटिटीज एज अ बाइनरी. सो एंड आवर गवर्नमेंट वांट्स टू इम्पोज बाइनरी जेंडर रोल्स अपॉन अस. और ये जो डॉक्यूमेंट अभी आया ये काफ़ी नियो कॉलोनियल और फ्यूडल डॉक्यूमेंट है अगर आप देखेंगे, और कास्टिस्ट है. इट्स वेरी कास्टिस्ट, वेरी ब्राह्मणिकल, so much trans misogyny is there. Like if I am talking about cultural identities, सिर्फ जो ब्राह्मणिकल कल्चरल आइडेंटिटीज़ हैं उनको ही रिकग्निशन मिली है, लाइक किन्नर, हिजरा, अरावली, जोगतीज. व्हाट आर अबाउट लाइक जो एथनिकल या फिर रीजनल कल्चरल आइडेंटिटीज़ है, जैसे नुपी मानवी, नुपी मानबा, तिरुनंगई, तिरुनार, ख्वाजा सीरा जो पंजाब में रही है कितने टाइम से, उनको तो बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है.
एक तरफ से हम ये भी बोल सकते हैं गवर्नमेंट जेंडर को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन देख रही है। सो ये एक पर्सपेक्टिव है। सेकेंडली कि अब इस जो मेडिकलाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस गवर्नमेंट ने ट्रांस जो अमेंडमेंट एक्ट बना दिया है 2026 का, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या क्या इश्यूज आने वाले हैं या इससे पहले क्या क्या इश्यूज ट्रांस कम्युनिटी फेस कर रही थी, नालसा के पहले या नालसा के आने के बाद कोई ट्रांस कम्युनिटी की कोई खास अपलिफ्टमेंट या एम्पावरमेंट नहीं हुई है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि अब एजुकेशन सेक्टर की मैं बात करूं तो कितनी ट्रांस कम्युनिटी को जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम यूज़ करने से रोका जा सकता है, विमेन टॉयलेट्स यूज़ करने से रोका जा सकता है एज फॉर द ट्रम्प की जो एंटी ट्रांस पॉलिसीज़ हैं। सेम वही चीज़ हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस पॉलिसीज़ को यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया है कि ट्रांस वुमेन को क्या कहते हैं स्पोर्ट्स में रोका जा सकता है, विमेन स्पोर्ट्स में आप नहीं कर सकते। जैसे अभी रिसेंटली ओलंपिक्स ने मना कर दिया कि नहीं, ट्रांस वुमेन कैन नॉट फाइट इन द विमेन्स। सो इस तरह की जो बिल आते हैं वो किस तरीके से सिर्फ विमेन टॉयलेट्स में इश्यूज होगा, ट्रांसजेंडर को जो सेपरेट टॉयलेट्स बने हैं वहाँ रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। इसके साथ साथ में जो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली पढ़ रहे हैं ऑन गोइंग, सो उनका फी वेवर कैंसिल कर दिया जा सकता है, उनके हॉस्टल एकोमोडेशन कैंसिल किए जा सकते हैं, उनको हॉस्टल से निकाला जा सकता है, और जो पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनकी जेआरएफ रोका जा सकता है। क्योंकि जब हम ये एक्ट पढ़ते हैं तो इसमें ये काफ़ी रेट्रोस्पेक्टिवली ये करता है, बात करता है। तो जब रेट्रोस्पेक्टिवली कोई एक्ट बात करता है तो आपके प्रीवियस जो आइडेंटिटी कार्ड्स थे वो इनवैलिडेट हो जाते हैं, और जो इनवैलिडेट हो गए एंड आई एम हैविंग दैट लाइक जो बेनिफिट्स अभी मैं ले रही हूँ तो उनका क्या होगा, इट विल बी लाइक स्टक हो जाएगा वो पूरा। इससे एक चीज़ और होगी, जो पीयर सपोर्ट ग्रुप्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में हमारी, उनके ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, क्योंकि और कोई कलेक्टिव्स जो इनफॉर्मल या फॉर्मल बने हुए हैं और जो सपोर्टिव फैकल्टी हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो क्रिमिनलाइज हो सकते हैं टू सपोर्ट द ट्रांस स्टूडेंट्स। सो ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है। और अब मैं हेल्थ केयर की बात करूँ तो who have accessibility to afford gender affirmative health care, कौन अफोर्ड कर सकता है? अपर कास्ट, अर्बन एलीट, ट्रांस कम्युनिटी। और इसमें एक नैरेटिव जो ट्रांस लोगों का है कि असली और नकली का एक नैरेटिव चलता है। तो who will become a real trans and who will become a fake trans? Real trans will become a upper caste who have that privilege to access the healthcare, and who will become a fake trans? Dalit, Bahujan, Adivasi, those who don't have any socio-cultural support, those who don't have economical support, those who don't have political support, so वो fake trans consider कर लिए जाएंगे। और इसमें एक चीज़ प्रॉब्लम ये है, उनको फेक ट्रांस बोल के उनको क्रिमिनलाइज किया जाएगा, और सेक्शन 18 का जो क्लॉजेस हैं वो उनके अगेंस्ट यूज किया जाएगा। एक तरीके से जो दलित, बहुजन, आदिवासी हैं उनको उनके साथ ये क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। So Yashika, from whatever you were saying, there's just one follow-up question for our viewers, which is कि आपने कहा कि जो सपोर्ट ग्रुप है, जो प्रोफेसर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, बायोलॉजिकल, नॉन बायोलॉजिकल फैमिलीज हो सकती है, उनको क्रिमिनलाइज करने का या उनको प्रॉब्लमेटाइज करने का स्टेट द्वारा ये एक्ट में एक नया एक इंटरवेंशन आ रहा है। अगर आप उस पर थोड़ा सा हमें क्लियर कर सकें कि वो क्लॉज किस तरीके से ये कर रहा है, सपोर्ट नेटवर्क को एक तरीके से इरेज कर रहा है या क्रिमिनलाइज, प्रॉब्लमेटाइज कर रहा है। बिल्कुल, मैं इस पे फोकस करना चाहूँगी। इसका एक क्लॉज है सेक्शन 18, बाय फोर्स, थ्रेट, कोर्शन, अल्यूरमेंट, डिसेप्शन, इंड्यूस एंड इन्फ्लुएंस। अब इसमें कंपेल्स एनी पर्सन विदाउट और नॉट सच पर्सन इन अ ट्रांसजेंडर पर्सन टू ड्रेस, present or conduct themselves outwardly as a transgender person against the will of such person, and employs, uses and causes such person to engage in begging, solicitation,
servitude, and any other form of forced or bonded labor while so presenting. Like इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूँ, जो बेगिंग कर रहे हैं ट्रांस लोग, उनको इसके अंदर क्रिमिनलाइज किया जाएगा, बिकॉज यू नो कि ट्रांस कम्युनिटी मोस्ट ट्रैफिक सिग्नल्स पे, ट्रेन्स में उनका बेगिंग से ही। सो लाइक जो पीयर ग्रुप्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में हमारे पीयर ग्रुप्स होते हैं, फ्रेंड्स सर्कल होता है, तो उनका जो सपोर्ट सिस्टम है वो किस तरीके से हार्म होगा, क्योंकि अगर मैं अपने यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो वहाँ पे हमारा पीयर ग्रुप्स बना हुआ है जो सपोर्ट करते हैं ट्रांस स्टूडेंट या ट्रांस कम्युनिटी को, जो फैमिली से भाग गए होते हैं, ठीक है, जो जिनको हेल्प चाहिए होती है ट्रांजिशनिंग में, जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, जिनको डिस्फोरिया होता है, तो उनको हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो सपोर्ट कैसा होता है कि उनको हम मेंटल हेल्थ से कनेक्ट कर देते हैं, मेंटल हेल्थ जो प्रोवाइडर्स हैं या काउंसलर से उनको हम हेल्प करते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशंस के थ्रू टू गिव देम पुलिस प्रोटेक्शन, सो जो घर से भाग जाते हैं। तो अब इस क्लॉज के तहत वो पूरा सपोर्ट सिस्टम जो हमने पीयर ग्रुप बनाया है वो पूरा खत्म हो जाता है, वो क्रिमिनलाइज हो जाएंगे, मतलब हम लोग क्रिमिनलाइज हो जाएंगे। इफ आई एम सपोर्टिंग माय ट्रांस फेलो और ट्रांस कलीग, तो आई एम बिकम अ क्रिमिनल, सो दैट्स द पॉइंट। एंड मैं ना इसमें ऐड करना चाहूंगी जो यशिका ने बोला कि बेसिकली क्या है ना कि ट्रांस कम्युनिटी में ना बहुत ज़्यादा कम्युनिटी नेटवर्क्स एग्जिस्ट करते हैं। अब जैसे अगर आप मेरे ही मतलब चोजन फैमिली में देखें तो जैसे मेरी जो बेटी है तो शी रीच्ड आउट टू मी जब वो 14-15 साल की थी, ठीक है, कि दीदी मैं अपना हाथ काट लूंगी। उसने मेरी इंस्टा पे वीडियोस देखी, उसने कहा कि मैं अपना हाथ काट लूंगी क्योंकि मेरे घर वाले मुझे ऐसे लड़का बना के रख रहे हैं ये और वो और मतलब मुझे बचा लो। तो अब लाइक तुम्हारे पास एक मतलब यू नो जनता से तुम्हारे पास कोई इंसान ऐसे बोलने आ गया किसी भी इंसान के पास, तो क्या उसकी मदद करना गलत है? हाँ, तो मैंने उसकी बात करी, उसकी मम्मी पापा से बात करी, उसकी लाइक पूरी फैमिली को कन्विंस किया और वो आज मेडिकल ट्रांजिशन कर रही है। वो 18 साल की हो गई, वो मेडिकल ट्रांजिशनिंग की तरफ जा रही है, वो मतलब अब अपनी जिंदगी जी पा रही है, ठीक है। वो बच्चा मार लेता अपने आप को अगर बेसिकली इस नियम के तहत अगर हम देखें कि अगर हम उसकी मदद करते हैं तो दैट ना करें, क्योंकि इफ अगर हम मदद कर रहे हैं तो हमें सरकार क्रिमिनल बोल रही है। हाँ, अब अगर हम मदद करना छोड़ दे तो बच्चे मरने शुरू हो जाएंगे। मतलब सरकार को ये चीज समझ क्यों नहीं आती है कि मतलब इस कम्युनिटी में कोई ट्रांसजेंडर लोगों की जिंदगी बहुत कठिनाइयों से भरी होती है। कोई भी चुन के नहीं आता है इस जिंदगी में कि मतलब ओ हमें बहला लो फुसला लो और हम तुम्हें कठिनाइयों की जिंदगी दे देते हैं, है ना। कोई कह रहा है खुद से कि भाई मैं ये हूँ, मुझे इसमें आना है, मैं ट्रांस औरत हूँ। अब वो बच्चा कह रहा है या तो मुझे ट्रांस औरत बनने दो वरना मैं मार लूंगी खुद को, और सरकार कह रही है जिसने इसको ट्रांस औरत बनने में मदद करी वो क्रिमिनल है। तो मतलब सरकार कह रही है कि जो ट्रांस बच्चे उनको मर जाना चाहिए। सरकार मतलब बेसिकली दिस इज जेनोसाइड करना चाह रही है हमारी पॉपुलेशन के साथ। मतलब इतनी बदतमीज बात है सरकार की। This brings me to my next question because कात्यायनी और याशिका ने ये अंडरलाइन किया कि किस तरीके से ये जो एक्ट है this has things which is very anti-trans है, very anti-genderqueer है, very anti-non-binary है, जो पूरा legislative tone है और जो implementation होगा। That brings me to the question कि सरकार ने आखिर इस एक्ट के बारे में क्या बोला है? What does the document say? What has the minister said? सदन में उन्होंने क्या बोला है? So the minister Dr. Virendra Kumar has claimed that the Trans Act 2026 is for सबका साथ सबका विकास and has a scientific rationale to it. So my next question to Amrit is that from your own experience of working as a grassroots activist and working very closely with rural parts of North India, also as a library activist, what do you think about this claim that the government has made? सबका साथ एंड सबका विकास अगर हम देखें, खास करके उस व्यक्ति से पूछें, उस व्यक्ति से बात करें, एक नॉर्मल जो पॉलिसी नहीं बना रहा है या जो उस पर चीज़ें कर रहा है उससे बाहर ही कि हमारे लिए क्या सही है। आप देखेंगे कि जैसे हमारे साथी ने बताया कि कोई भी ऐसा ट्रांस कम्युनिटी से या क्वेयर कम्युनिटी से कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो इस ट्रांस एक्ट के विरुद्ध बात नहीं कर रहा होगा, उसके खिलाफ बात नहीं कर रहा होगा। मतलब मुझे व्यक्तिगत
तौर पे भी अगर इसको इस तरीके से इनके जो शब्द हैं कि सबका साथ सबका विकास, इस पे ना जाएं, हर व्यक्ति से पूछा जाए जो उस समुदाय से है जिसके लिए एक्ट बनाया गया है, तो पूरी तरीके से खोखला और एक तरीके से शब्दों का जो एक कहते हैं ना कि अच्छा शब्द से लोगों को मारना, उस तरीके से है। और पहली बात तो 2019 में जो ट्रांसजेंडर एक्ट बना और 2020 में इम्प्लीमेंटेशन में आया, तो हम देखते हैं कि 2019 में भी जो इनका सबका साथ और सबका विकास था, बिल्कुल भी अगर आप उस ट्रांसजेंडर एक्ट जो पास हुआ और बना भी कानून, उसमें देखेंगे कि कहीं भी डाइवर्सिटी का जिक्र ही नहीं है। इंडिया में अगर कोई भी नेता होगा उसके भाषण में इवन ट्रांसजेंडर पॉलिसी को छोड़ दो, इसके अलावा कोई भी पॉलिसी ले लो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ले लो, नेशनल हेल्थ पॉलिसी ले लो, हर डाइवर्सिटी जिक्र किया जाता है, कास्ट, क्लास, जेंडर, लैंग्वेज, लोकेशन। क्या ट्रांस एक मूर्त इंसान है जिसके पास सब पावर है, सारी शक्ति है? उसमें भी बहुत सारी विविधता है, उसमें भी जाति की, लैंग्वेज की और जियोग्राफी कहाँ से आते हैं लोग, अलग अलग लोग हैं। तो सबसे पहले तो जो पॉलिसी शुरू में ही थी पूरी खोखली थी, लेकिन एक थोड़ा सा साधन था, एक जो अधिकार मिला था सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी का, वो हमें मिला था। लेकिन खास करके जो सबका साथ सबका विकास, खास करके रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, इस तरीके से बिल्कुल भी गायब था, जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन और एक तरीके से कहें तो जो 2019 की इनकी जब बनी पॉलिसी, इसके बाद जब उसको इम्प्लीमेंटेशन पे आया तो 2020 में आई थिंक कि 30 करोड़ बजट पास हुआ, उसमें से कितना 1% भी व्यय नहीं हुआ। इमेजिन करिए कि उस नेशनल काउंसिल बोर्ड मेंबर में कौन था, क्योंकि कोई डाइवर्सिटी नहीं थी भाई, अपर कास्ट ब्राह्मण, तो वो हमारी बात क्यों करेंगे, वो दलित की क्यों बात करेंगे, वो आदिवासी ट्रांस की क्यों बात करेंगे, कि जो क्योंकि हर कोई नेता ही बोलता, हम नहीं बोल रहे हैं, नेता ही बोलता 70% पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरियाज, मोस्ट ऑफ people live in village, 85% दलित आदिवासी बहुजन live in villages। So उनके पास ना तो इंफॉर्मेशन, सरकार इंफॉर्मेशन दे रही है 2000 एक्ट के तहत कि अंग्रेजी में कि ये तुम्हारी योजनाएं हैं, ले लो योजनाएं, लेकिन कितने ट्रांस लोग अंग्रेजी जानते हैं जो खास करके गांव में हैं, बेचारे उनके प्रतिदिन घर से हिंसा होती है, गांव में गली में मोहल्ले में हर दिन बोला जाता है हिंदरे, छक्के, मीठे, मेहरा, ऐसे जो लोकल शब्द होते हैं, और इवन कि कैसे लैंग्वेज से छुपाया जा रहा है हमारे अधिकारों को। तो पहले ही 2019 में हम एक्सक्लूड थे, खास करके ना तो हमारी रोजगार की बात की गई, ना तो शिक्षा की बात की गई, और ना तो डाइवर्सिटी की बात की गई। और 2026 का जो ट्रांस एक्ट है, जिसमें हमारे साथी ने अभी बोला ही बहुत अच्छे से उस पर अपना साझा किया, उसमें देखते हैं कि जो एक्सक्लूजन आ रहा है, खास करके ट्रांसमेन को तो बाहर ही कर दिया गया है, नॉन बाइनरी, जेंडर फ्लूइड, और इनका जो ये ट्रांसजेंडर एक्ट बिल है, आप देखेंगे कि जिनका जितना भी इनका क्लॉज है, सॉरी हाँ है, एक दूसरे से इंटरलिंक कर रहा है। इंटरलिंक इस तरीके से फ्रेमिंग है जैसे मनुस्मृति नहीं थी, उसी तरीके से एक तरीके से मार रहा है। जैसे इन्होंने कहा है कि लाइक हिंजरा, और मतलब कि ये ए पर्सन हैविंग सच सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी एज किन्नर, हिंजरा, अरावनी एंड जोगता आर इंचस, और ए पर्सन विथ इंटरसेक्स। कभी इंटरसेक्स से पूछे हो कि वो ट्रांसजेंडर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, उसको भी डाल दिया गया है। तो मतलब कि सोशियो कल्चर में आप मुस्लिम नहीं हैं और क्या बोलते हैं क्रिश्चियन नहीं है, उनकी सोशियो कल्चर कहाँ गई भाई? धर्म निरपेक्षता की बात करता है हमारा संविधान, मतलब कि एकदम एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कास्टिस्ट, रेसिस्ट,
ट्रांस बिल है जिसको हम ऐसे नहीं मुंह बोल रहे हैं, जैसे आपने बोला रेशनल, हम तर्क की बात कर रहे हैं, एक एक चीज आपने जो किया है वो भी, और इसके अलावा जो डाला भी है इन्होंने, फिर उसके बाद इनको ही मुजरिम बनाया जा रहा है, जैसे हिंजरा जोगता, और खास करके इनका जो अभी ये है कि जो हमारे साथी ने बताया कि 10 साल की सजा है, खास करके जो सपोर्ट, एक तो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कमरा किराया पे देने वाला नहीं, अगर कोई दे रहा है तो उसको 10 साल की सजा है। और इवन हमें कहाँ फोर्सफुली किया जा रहा है कि हिजरा और किन्नर घराना में क्यों जाए भाई, हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। सरकार का बिल ऐसा दिख रहा है कि हमें झोंका जा रहा है कि जाओ वहीं पे, तुमको पढ़ना लिखना नहीं है, तुम रोजगार की बात मत करना, क्योंकि रोजगार उनको साथ भनक लग गई है कि ये लोग भी पढ़ने लगे हैं, ये लोग भी अंग्रेजी बोलने लगे हैं, तो कहीं ये रोजगार और ये रिजर्वेशन की बात ना करे, इसलिए इनको पूरी तरह से क्रिमिनलाइज कर दो, और इनके हर सेक्शन में हमें क्रिमिनल बनाया गया है, हर सेक्शन में इन पे देखेंगे, अगर आप थॉट प्रोसेस करेंगे, क्रिटिकली सोचेंगे, क्रिटिकली सोचने की जरूरत नहीं, खुद से अगर आप एक ट्रांस है उस कम्युनिटी से आते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि कैसे ह्यूमिलिएट करता है। और इनका जो पॉलिसी है पूरा ब्राह्मणिकल ढांचे से, मनुस्मृति में जैसे महिलाओं को कोई दर्जा नहीं था, ट्रांस को कोई दर्जा नहीं था, उसी तरीके से फ्रेमिंग किया गया है कि कैसे पहले ट्रांस को मारा जाए, फिर महिलाओं को भी नंबर आएगा, मतलब गला कटने वाला है सबका। एक बैक टू बैक देखिए, जो जजमेंट भी आ रहे हैं और खास करके जो पॉलिसी भी बन रही है वो मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी के अगेंस्ट मिल रही, और उसके लिए सरकार के पास रातों रात 2 घंटे 4 घंटे जजमेंट आ जा रहा है, और किसी इतना रेप हो रहे हैं हमारे देश में, उसके लिए 4 साल 5 साल लग रहे हैं, लेकिन मार्जिनलाइज कम्युनिटी जो मेजॉरिटी में इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके बिल को जो है उसको तुम बिना उनके सलाह के तुम लागू कर दे रहे हो, मतलब उसको चीजें कर दे रहे हो इस तरीके से। और वही है कि पूरा ये ब्राह्मणिकल पॉलिसी इसको हम कह सकते हैं, जो मनुस्मृति से लिया गया है कि जहाँ पे लोगों को क्रिमिनलाइज कर दिया जाए, ट्रांस को जो खुद अपनी पहचान से जीना चाहते हैं, जहाँ पे उनको ना घर में जगह है या ना तो परिवार में, ना तो गांव गली मोहल्ले में, हर दिन गुजरना पड़ता है उस ट्रामा से, उस एंजाइटी से। थैंक यू सो मच अमित, आपने बेसिकली हमें ये इस दिशा में सोचने के लिए इनवाइट किया है कि हाउ द पॉलिसीज आर वेरी मच इंटरकनेक्टेड इन अ वे दैट what kind of attitude they have towards the already marginalized community, जो already जो शोषित समाज है, उसमें ये जो ट्रांस बिल है ये एक तरीके से उस शोषण के पूरे लेयर्स में एक एडिशन करता है, और कहीं ना कहीं शोषण शायद जुड़ा हुआ है, इस दिशा में भी सोचने के लिए हमें लेके जाता है। मेरा अगला सवाल कात्यायनी के लिए है, which has also come out of a conversation that we were having this morning, wherein she brought in a very interesting word, एक शब्द इन्होंने कहा था which was a point of view, जिसमें वो ये कह रही थी कि the state is trying to manufacture cis trans person, which is a very interesting point of view to look at. So and then you also brought in your experiences of recently moving to Delhi, or access to housing में trans और gender queer, gender fluid, non-binary persons and communities को किस तरीके की दिक्कतें होती हैं, which also connects to the politics of passing as binary man or woman, जिसके बारे में याशिका भी बात कर रही थी। So Katyayani, can you talk more about it to me, and also can you tell us a little bit about where do the genderqueer or non-binary people are now left after this act? So, like how the state is talking about trans women, and मतलब जैसे कि हमने संसद में भी सुना, जो मतलब बीजेपी के नेता थे कि उन्होंने बहुत ही ऐसे एक धुआंधार सी स्पीच में बोला कि ओ ट्रांसजेंडर women are women and transgender men are men, and that is a fact, like that is not something that we're not saying that is untrue, but how the government is looking at it is कि ट्रांसजेंडर women अगर कोई अपने आप को कह रहा है तो just like you know तुम like you find like basically like you know you get like surgically transitioned into a woman, like, and like the thing is I am somebody who has went in for the procedures and all of that, and the thing is uska loan I'm still paying, and like it's not like your family is not going to give you a loan on this money, and like nobody is going to like outright help you for this money, and like the money that you need to
basically get like surgeries and all of those things done. So nobody is going to help you. Okay? You have to do it yourself, or like, make the money and then take a loan and all of that. Now, I am an educated person. Okay? I do job. I like have my own thing going on. Like I am like somebody who does have access to resources, right? But even I had to take a loan because like honestly like मतलब मेरे खुद का खर्चा मुश्किल से निकलता है महीने का, so I have to also like take a loan to do that, right? And now I am like stuck in that like procedure of paying that loan and all of that, and definitely one day it will be paid and like everything would be hunky dory and everything. But like the thing is कि the government is expecting this out of every trans woman, right? कि मतलब oh just like go for surgeries as if like तू पैसा दे दो, like pay us. Like tomorrow everybody will be on the surgical table. Like it's not like they don't even realize that the economic condition is so bad that like you have to take loans and shit for it to actually happen in your life and then pay for it every month. It's not like you'll just get things like this in life. And then the government is forcing us to be this way so that like basically the way trans people live is completely different than the way cis people exist in society. जैसे cis समाज के देश में क्या है ना कि you basically go marry in your own caste, like what Baba Sahab taught us about endogamy, right? Like you basically like तुम्हारी you'll get an arranged marriage with like your own caste ka people, and you will just marry and live with that, and you'll probably like I'll be honest like everybody's husband is cheating because like nobody loves anybody. Like I'll be honest, like this country does not happen on love. That's why sex work is such a good profession in this country, because which everybody's husband is looking for another woman, because there's no love here. There's nothing. It's just caste and like producing another child of your caste, which is so gross. And like the government is just like keep doing this. That this is only the way you can exist. If you're a trans woman, then probably get a surgery and like get like into the system of like existence, change yourself completely. जब हम तुम्हें नंगा करके, because they have medical clauses that they like look at us naked and like then tell if we are a woman or not. So when they check us completely, we should just like live like that, because the thing is in our lives like right now in my house like when I took like when I अपना घर लिया, I moved to Delhi recently, and so the first 1 week everybody was very nice to me and all of that. My owners know that I'm a trans woman, but other than the owners, the आसपास के लोग did not figure out that I'm a trans woman एकदम से देख के, because मेरी transition को time हो चुका है. So now they are like looking and now a lot of trans people are coming from like 1 week and like they could see that there are trans people and queer people coming at their house. Suddenly everybody's behavior changed, right? And the government wants ki we don't live like this. We don't have our own friends at our house. The other trans people, like half of your friends would be from the Hijra Kinna community. Some of them would be like trans men. Some of them would be non-binary people. Some of them would be gay men and like who dress like लड़कियों के कपड़े जो gay लड़के पहनते हैं. Like there'll always be colorful people around you, and like the government is like, no, leave all of this, get your surgeries and all, go marry in your caste and do whatever. Like don't exist as this person joki, because that's why they have these laws ki if you help somebody you will get captured and we will like do this, and that's why they have all of these laws ki if you help another trans person, because our society does, we do not care about living with a man. Like I'll be honest, I do not see a future with a man in a romantic relationship. I think it's too much. Like I think I see like living with sisters and trans women and all of that only as a future. And I just want that. Like, and who the fuck are they to tell me, right? Like, oh, you cannot have trans friends. If you help a trans friend, we will put you in jail. Who are they? Who are they? Hana? So the thing is ki they want us to become like ki, oh, go marry a man. Listen, if I want to, I will. There are many men who want to marry me, but like we don't want, I think, because honestly, like right now, cis women are realizing that it's not what it's made out to be. Okay? Cis women are realizing कि मतलब मर्द का जो पूरा concept है शादी करके बैठो कच्चे धोने नहीं ना यार किसी के. So so basically it is against the way we live, and they're trying to make us these cis trans people, right? कि मतलब leave all your transness, all your beauty, all the joy, all the laughter behind, and go do the utensils. किसी के घर जाके बर्तन धो, खाना क्यों बनाए नहीं करना. औरतें भी नहीं करना चाहती, लाइक मतलब सिर्फ औरतें खुद नहीं करना चाहती, हम क्यों करें?
मतलब हद है जबरदस्ती का कि मतलब ट्रांस कम्युनिटी के लोग घर आएंगे, तुम किसी की मदद कर दोगे तो तुम्हें जेल में डाल देंगे। ये कोई सेंस बनती है इन चीजों की? Okay, so on that note, okay, so there's this whole another domain of conversation about how sex work and gender and like caste intersects. So maybe that could be a whole different conversation. But for now, we will move to Yashika with the next question, which is the so the trans and the non-binary community जो है वो अपने आप में it's very heterogeneous, बहुत diversity है जैसे कि अमित ने बात करी। तो now we have a act, we have a Trans Act 2026 और उसका जो भी इफेक्ट है, जो लॉ है वो मटेरियलाइज करेगा अलग अलग तरीके से फ्रॉम विद इन द ट्रांस एंड द नॉन बाइनरी एंड द जेंडर फ्लूइड कम्युनिटी ऑल्सो। And then there is no denying that we live in a country where inequalities and violence are there based on caste, religion, and it has been existing like for years until now. So given this truth of the country, how do you think the consequences of this act would be on this very heterogeneous trans and genderqueer community of India? दिस एक्ट, ये जो एक्ट पास किया गया है, ये बिल्कुल भी इंटरसेक्शनैलिटी की बात नहीं करता है, क्योंकि इंटरसेक्शनैलिटी की बात नहीं करता है। और प्लस हु विल गेट द बेनिफिट, है ना, हु विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज द अपर कास्ट पीपल। कास्ट इन क्वेयर स्पेसेस इज अ रियलिटी, इट्स नॉट अ मिथ, इट इज अ रियलिटी। हमारे ही अपर कास्ट के लोग ये बोलते हैं हम 36 बिरादरियों की रोटी खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कास्टिज्म होता नहीं है, ठीक है, ये बोला जाता है, लेकिन कास्ट एग्जिस्ट करता है। अभी आई थिंक 1-2 साल पहले की बात है, मेरे साथ कास्टिज्म किया ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड लखनऊ उत्तर प्रदेश, देवेंद्र एस मंगलमुखी, मैं उसका नाम लेना चाहूँगी। मैंने उस पर कंप्लेन की, उसने रिवर्ट मतलब उसने बैक मेरे पे कंप्लेन कर दी। मैंने जो कंप्लेन की वो रजिस्टर नहीं की गई, उसने जो कंप्लेन की वो रजिस्टर कर ली गई। और हम 4 लोगों का नाम लिखवाया, जिसमें ग्रेस बानो, मैं, ऋत्विक और एक और पर्सन का नाम लिखवाया था। तो हम 4 ट्रांस वुमेन लोगों का नाम लिखवा दिया था और ये झूठा केस लिखवाया था। और इस तरीके का जातिवाद, उस जातिवादी गालियाँ, ये आए दिन हमें जातिवादी गाली देते हैं। अभी रिसेंटली जो अभी धरना हुआ था जंतर मंतर पे, वहाँ पे मैं गई तो वहाँ सारे पूरा हिंदुत्वाइज, पूरा माहौल ही हिंदुत्व और ब्राह्मणाइज था। वहाँ जाके फिर मुझे ये लगा कि ये स्पेस हमारे लिए नहीं है। वहाँ पे मैं कहीं ना कहीं खुद को अलग महसूस कर रही थी कि पूरा ऑक्यूपाइड स्पेस है सवर्णा लोगों का। और हम देखते हैं कि मीडिया की विजिबिलिटी किसके पास है। मीडिया की विजिबिलिटी, क्विंट मीडिया हो गया, लल्लन टॉप हो गया, किसकी डॉक्यूमेंट्रीज बन रही है, ऑल आर दी अपर कास्ट है, त्रिपाठी, शुक्ला एंड ऑल। ये है रियलिटी। हमारे पास तो एक्सेसिबिलिटी नहीं है, लिटरेसी ही नहीं है, तो हमारे पास तो मीडिया तो हमें रिकॉर्ड ही नहीं करती है। मेरे साथ कास्टिज्म हुआ, कौन सी मीडिया थी जिसने मेरा रिकॉर्ड किया, कि कौन सी मीडिया थी जो मेरे साथ कास्टिज्म जो हुआ उसको रिकॉर्ड किया। मैं भटक रही थी, दिल्ली आई थी, कोई भी सेफ स्पेस रहने के लिए नहीं था, मैं भटक रही थी, इन्होंने मेरी हेल्प की थी। अपने ही स्पेसेस में, ट्रांस स्पेसेस के अंदर मैं खुद को सेफ नहीं फील करती हूँ। जब मैंने हेल्प मांगी किसी एक एनजीओ से दिल्ली बेस्ड, उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं रख सकते हैं। तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा खुद का स्पेस नहीं है। और जब हम ऐसे एलीट स्पेसेस में देखते हैं तो ये एक्ट किस तरीके से काम करेगा, ये हमारे ही अगेंस्ट काम करेगा, क्योंकि हम इस कल्चर में नहीं रहना चाहते हैं। इफ आई एम PhD रिसर्च स्कॉलर, तो मैं क्यों किन्नर और हिजरा कल्चर में जाऊं? मैं इंडिपेंडेंट रहना पसंद करूंगी ना। और कोई भी इंसान अगर वो एजुकेटेड होगा, वो पढ़ेगा लिखेगा और इंडिपेंडेंट होना चाहेगा, तो वो क्यों उस एक्सप्लॉयटेशन के दलदल में घुसेगा? और वो डेरा का सिस्टम, जो गुरु और चेला, ये खुद एक हायरार्की है, एक्सप्लॉयटेशन वहाँ होती है। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट। क्यों उसको हम इतना रोमांटिसाइज कर रहे हैं? वो खुद एक एक्सप्लॉयटेशन है। तो मुझे ये लगता है कि ये पूरा जो बिल लाया गया है, जो
सोशो कल्चरल आइडेंटिटीज से बिलोंग नहीं करते, उनको बाहर करने के लिए, और जो अपर कास्ट है उनको सपोर्ट सिस्टम देने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सारा जो बेनिफिट है वो किसको जा रहा है? किन्नर अखाड़ा को जाता है। आए दिन कुछ ना कुछ नए नए कहीं बांग्लादेशी किन्नर, तो कहीं ये नकली किन्नर पकड़े गए, तो किन्नर जिहाद, तो पता नहीं क्या क्या फैला दिया है जो कि नहीं, जो चीज़ें हैं ही नहीं। ये सब प्लॉटिंग है जस्ट बिकॉज ऑफ मनुस्मृति। मनुवादी पीपल आर देयर, दीज अपर कास्ट एंड ब्राह्मणिकल किन्नर रावनीज, दीज पीपल आर डूइंग दिस। एंड ये लोग खुलेआम बोलते कि नहीं हमारे बीच में तो कोई कास्टिज्म नहीं होता है, हम तो खुद 36 बिरादरी की रोटी खाते हैं, हमें कहाँ। अब बोल कौन रहा है? त्रिपाठी जी। हमसे पूछो जाति क्या होती है, जातिवाद क्या होता है, कैसे होती है। मेरे गांव में जाके देखो कैसा होता है जातिवाद। मैंने खुद अपने देखा है कि बचपन में तो गिलास फोड़ दिए गए थे। मेरी मम्मी किसी एक ब्राह्मण के यहाँ एक कप में चाय पी थी तो वो गिलास फोड़ दिए। ये रियलिटी है। और अब त्रिपाठी जी बताएंगे कि कास्टिज्म होता है कि नहीं होता है। और अभी आपने रिसेंटली देखा राजस्थान हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट कैसे वापस लिया, अपना कैसे डिलीट कर दिया। तो मुझे कोई भरोसा नहीं है इस जुडिशरी पे, यहाँ का सिस्टम पे। दिस इज ब्राह्मणिकाल, पूरा ब्राह्मणाइज हो चुका है। अब हम किससे जस्टिस मांग रहे हैं? वो अपर कास्ट के तो बैठे हुए हैं ना वहाँ पे जुडिशरी में। कौन सा रिजर्वेशन, उसमें रिजर्वेशन है? अब हमारे लोग कितने हैं? ट्रांस लोग है कोई? सीजीआई कोई 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी उसमें 15 विमेन जो हैं वो उनका रिप्रेजेंटेशन था। क्या एक भी ट्रांस थी? एक भी ट्रांस को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला? क्या हमारे लोकसभा राज्यसभा में कोई ट्रांस पॉलिटिशियन है, एमपीज हैं? क्या हमारा कभी कोई प्राइम मिनिस्टर ट्रांसजेंडर बना? क्या एनसीटीपी नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन में दलित बहुजन आदिवासी से लोग आते हैं? जितने भी ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बने हैं, एनजीओ चला रहे हैं, शेल्टर होम चला रहे हो, कौन चला रहे हैं? दीज आर अपर कास्ट ट्रांसजेंडर सवर्णा पीपल। सारा कैपिटल तो उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है। हम कहाँ जाएंगे? हम तो एकदम इरेज खत्म कर दिए गए हैं, बिल्कुल खत्म। So Yashika's intervention is very important because it invites us to look within the trans and the genderqueer and the non-binary community and sort of investigate कि किस तरीके के hierarchies internalize या within communities exist करते हैं, apart from how the state or apart from how the other communities looking at the queer / trans / non-binary or gender fluid community. Also, what Yashika speaks also takes me back to something that Gopal Guru has said, which we oftentimes read about the empirical Shudra and the theoretical Brahmins. So this is something that we oftentimes also discuss in academia and within movement spaces. So this is also a very important intervention that all of us जो किसी भी तरीके से हम एंटी ट्रांस एक्ट मूवमेंट के साथ जुड़े हैं, ये हम अपने स्पेसेस में इन्वेस्टिगेट करें। और जितने भी पॉलिसी मेकिंग स्ट्रक्चर्स है उसमें भी we should be very aware when we are talking about the movement in that light. And this also brings me to my next question, which is with Amit, which is कि अभी recently and through time, veteran Dalit trans activist Living Smile Vidya reminds us that the importance of anti-caste leaders and philosophers like Dr. Babasaheb Ambedkar and Periyar are very important. हर हमेशा जब हम इंडिया में किसी भी लिबरेटरी मूवमेंट की बात कर रहे हैं, and then at the same time, as our guest pointed out, we also have trans communities who are Hindu religion affirming trans communities, and then we also have people who are Hindu religion and mythology affirming people, and hence I assume that these people and communities are little closer to the nucleus of power, if not very close. At least some closeness should be there. However, that proximity did not save us from the bill.
इतनी नज़दीकी शायद पावर के साथ होने के बाद भी हमने देखा कि बिल जो है वो एक्ट तो बन गया। तो इस सिचुएशन में हमारे देश में और भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिमूवल ऑफ क्रिश्चियन एंड मुस्लिम दलित्स फ्रॉम अंडर द SC/ST atrocities act. We also have things like bulldozing of Muslim communities. We have political prisoners, जो कि कई बार जो political prisoners ज़्यादा समय तक prison में रहे हैं, there is a certain identity marker associated with them. If we also look at the prison data, then certain communities का जो है ट्रायल रुका है. So who are the people who are in the prison? कौन जल्दी बाहर आते हैं? किस तरीके का support network है? These are the things which connects us एंड ब्रिंग्स अस बैक टू किस नज़र या किस क्रिटिकलिटी के साथ हम जो है ट्रांस एक्ट को देखेंगे और उसको लार्जर जो सिस्टम्स ऑफ पावर है उसके साथ हम कैसे जोड़ते हैं. सो माई क्वेश्चन टू यू इज़ दैट व्हाइल वी आर ऑफ कोर्स रिजेक्टिंग और क्रिटिकिंग दिस न्यू एक्ट, हाउ डज इट कनेक्ट टू लार्जर ऑपरेसिव पावर? शोषण के और जो कई पैमाने हैं जो हमारे समाज में हैं, ये क्या उसको बढ़ाता है या ये उससे मिली भगत जैसा कुछ है ये एक्ट? तो जैसे हमारे साथी यासिका ने बताया कि कैसे उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन झेला, और यासिका PhD कर रही हैं, इन्होंने मास्टर किया और बाहर की थोड़ी दुनिया भी देखी, तो इस तरीके से वो जो है इन्होंने फेस किया डिस्क्रिमिनेशन. इमेजिन करिए, बाबा साहब कहते थे कि गांव जातिवाद की फैक्ट्री है. मैं गांव में रहती हूँ और गांव में जो ज़्यादातर कह सकते हैं कि जो ट्रांसनेस है या क्वेयरनेस है, मैं ऐसे खुद ही अपने रिलेटिव्स में जानती हूँ कि 2 लोग इंटरसेक्स हैं, 2 लोग, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि उनकी पहचान भी क्या है और किस तरीके से भाषा और शब्द में उसे हम कह भी सकते हैं. और ऐसे बहुत सारे लोग ट्रांस और क्वेयर गांव में रहते हैं, खास करके जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, और वो अलग अलग तरीके से अपने ट्रांसनेस और क्वेयरनेस को जीते हैं. लेकिन क्या वो जो उनके साथ भेदभाव हिंसा होता है रुक जाता है? नहीं रुकता है, क्योंकि ट्रांसनेस शहर में आके बन जाता है या गांव में रह के ख़त्म हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है. क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होने वाले हैं जो गांव में रहने वाले हैं, उनके पास एक सीधा थोड़ा सा प्रोटेक्शन था कि अगर उनके साथ इस तरीके से कुछ हो सकता है या होता है तो ट्रांस एक्ट के तहत कंप्लेन कर सकते थे कि हमारे साथ ऐसा हुआ है या इस तरीके से है. लेकिन उन्हें माना ही नहीं जा रहा है कि ट्रांस हैं. जैसे हमारे साथी कत्तानी ने बताया कि कौन सर्जरी कराना चाहता है, हमें पैसे तो हम सर्जरी करा लेंगे. वो जो खाने के लिए जिनके पास नहीं है, जिनके पास काम नहीं है, रात में नौटंकी जैसे कल्चर में जाके नाचते हैं, अपनी ट्रांसनेस को एंजॉय करते हैं, लेकिन उनके पास रहने के लिए नहीं है, और तो कैसे सर्जरी कराएंगे? तो यानी वो पैमाना जो हमें मेडिकल से गुजरना पड़ेगा, जहाँ पे हमारी एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है, जहाँ पे हमारी पहुँच ही नहीं है. जो गांव में रहते हैं ट्रांस पर्सन, ना पे वहाँ पे डॉक्टर है, और ना खास करके सर्टिफिकेट. अभी तक गांव में सर्टिफिकेट नहीं पहुँचा है कि जो TG सर्टिफिकेट 2019 के तहत होता था, वहाँ इस तरीके से नहीं पहुँचा है कि कोई किसी के पास सर्टिफिकेट हो जो गांव में ट्रांस लोग हैं या क्वेयर लोग हैं. तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं कि जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति इतना जो अपनी बात या आवाज़ हमेशा उठाता रहता है, उसके साथ हिंसा या वायलेंट हो रहा है, तो एक गांव में रहने वाले व्यक्ति के साथ किस तरीके से होती होगी या हो रही है. तो इस तरीके से, और मूवमेंट में हम देखें खास करके जैसे आपने बताया कि सोशल किस तरीके से क्या जुड़ाव है, या किस तरीके से हम जो एंटी कास्ट मूवमेंट में भी अगर हम देखते हैं तो जो एक हिस्ट्री रहा है, जो पेरियार का या बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इतने दूर दृष्टि वाले रहे थे कि कहीं ना कहीं अगर वो लोग होते तो सबसे पहले उस चीज़ों को एक्सेप्ट करते, भले वो नहीं आते थे या उन्हें बाद में पता चलता, लेकिन वो एक्सेप्ट करते, क्योंकि उनके जो बात है, जो थॉट्स है, जो संविधान है, उससे रिफ्लेक्ट होता है. उदाहरण के तौर पे बाबा साहब ने 1934
1932 में बम्बई हाई कोर्ट में रघुनाथ कर्वे करके एक लेखक थे, उन्होंने सेक्सुअलिटी पर एक लेख लिखा था जिसका मुकदमा बाबा साहब ने लड़ा था। तो उसमें बाबा साहब ने कोर्ट किया था, एक फ्रेंच के डॉक्टर थे, और उस कोर्ट करते समय ये बोला था कि सेक्सुअलिटी, और डायरेक्टली होमोसेक्सुअलिटी की बात नहीं की, लेकिन बोला कि ये नेचुरल है, एक इंसान की नेचुरलिटी है और किस तरीके से जीना चाहता है, किस तरीके से पर्सनल लिबर्टी के साथ जीना चाहता है, वो उसकी आ जाती है। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो हिस्टोरिकली एक्सक्लूडेड कम्युनिटी किस तरीके से सोचता था, क्योंकि वो पीड़ा से गुजरा है और पीड़ा को समझता है कि एक इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करती है। और उसी तरीके से हम पेरियार की भी देखें, पेरियार की जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है, किसकी बात करता है? सेल्फ रिस्पेक्ट। हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जो एक एंटी कास्ट मूवमेंट है, या जो दलित बहुजन नायक नायिकाएं रहे हैं, उन्होंने हमेशा से जो है जस्टिस और इक्वलिटी की बात की है, और इक्वलिटी की बात ऐसे भी की है कि पीड़ा के साथ पीड़ा को जोड़ा है, कि अगर हम उसको दर्द को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन वो दर्द है, हम नहीं समझ सकते। जैसे सवर्णा, जैसे उदाहरण दिया कि कोई जिसने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सहा ही नहीं, वो ओपनली माइक में कह रहा है देयर इज नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन ट्रांस कम्युनिटी, वी आर दलित, वी आर आदिवासी, वी आर फेसिंग day to day. Yes. So how can other person speak? They have privilege of caste, class, language, education abilities and family support. So कि हम इमेजिन करें कि हमें वही व्यवस्था, जैसे हमने शुरू में बोला था कि वही व्यवस्था से फ्रेमिंग किया जा रहा है और पॉलिसी को, और पॉलिसी ऐसा है कि ऐसा ही नहीं है कि जो ट्रांस लोग हैं या जो पॉलिसी बन रही है इस तरीके से होगा, आगे जाके जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उन पे भी अटैक होगा अगर इस एक साथ एकजुटता में ना आए। तो खासकर महिलाओं के लिए भी एक चेतावनी है कि उनके भी उसी तरीके से ढांचे में उनके भी चीज़ें ख़त्म की जाएंगी धीरे धीरे और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, क्योंकि जो भी पॉलिसी देखो, हम तो कहते हैं कि कोई भी आके तर्क मार से, लड़ाई से नहीं, प्यार से, काइंडनेस से, तर्क से, कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में आके कोई भी बात करे हमसे, हम बात करेंगे। क्या तर्क है? आके कोई भी प्रधानमंत्री तक यहाँ आके बात कर सकते हैं, हम तर्क से बात करेंगे और उस कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में बात करेंगे और उस अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 आर्टिकल के अंतर्गत बात करेंगे जो हमें बराबरी की अधिकार देता है, जो हमें आर्टिकल 15 में कास्ट, जेंडर और जो है से जो डिस्क्रिमिनेशन फ्री बताता है। तो हमें जब संविधान हमें उस तरीके के अधिकार देता है तो मुझे लगता है कि कौन इस तरीके से हमें वंचित कर सकता है। एक तरीके से एक सोची समझी, ऐसा नहीं कह सकता कि सरकार ने बस ऐसे ही सोच के बना, ये बहुत ही रणनीतिक तरीके से इस पे काम किया गया है, रणनीतिक तरीके से काम किया गया है और मुझे लगता है इसमें सभी को एकजुट होना चाहिए, खास करके एंटी कास्ट मूवमेंट से जुड़े हुए लोग जिन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी है। तो इसको इस नज़र से ना देखें कि ट्रांस तुम्हारे दलित भी हैं, बहुजन भी हैं, वो अलग अलग तरीके से जूझ रहे हैं अपनी अपनी जगह पे। तो उस मूवमेंट से देखें, कम से कम अपने पूर्वजों के इतिहास को देखें कि इस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। वही तो हम बार बार कहते हैं कि अरे बाबा साहब होते तो सबसे पहले हम लोग का हाथ पकड़ते, चलो बच्चों हम तुम्हें आगे ले चलते हैं। जो हाथ बाबा साहब ऐसे किए रहते, साथ में ले जाते, क्योंकि उनकी बातों में, विचारों में रिफ्लेक्ट करता है। भले वो हमें नहीं कह सकते कि क्या थे, शिष्य थे कि क्या थे, लेकिन उनकी जो किताबें हैं, उनके जो विचार हैं, उसमें ही रिफ्लेक्ट करता है एक इक्वलिटी के, सबकी जो बात करता है बराबर से। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है कि एक जो सॉलिडरिटी की है, खास करके जो पीड़ित लोग हैं उनकी सॉलिडरिटी आगे ले जा सकती है और हमारे लिए जो एग्जिस्टेंस है, जैसे साथी ने बोला कि हम पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि ट्रांसजेंडर एक्ट बिल आ जाएगा तो हम ख़त्म हो जाएंगे, है ना, क्योंकि जैसे मर्द औरत जन्म ले रहे हैं वैसे हम भी जन्म लेंगे, है ना। और एक नेचुरल चीज़ है कि हम
जन्म ले रहे हैं, भले ही तुम नाम अलग रख दो या चीज़ें अलग तरीके से कर दो। और सबसे जो इम्पैक्ट होने वाला है, मुझे लगता ही नहीं, मुझे मेरा पूरा अनुभव है, क्योंकि जिस तरीके से मैं गांव में रहती हूँ, जिस तरीके से प्रतिदिन फेस करती हूँ इस चीज़ को, ट्रामा को, खास करके ये चीज़ें देख करके कि हमारी एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है। हम शहर में नहीं रह सकते, हमारी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। हम ट्रांजिशन नहीं कर सकते, हमारी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। और हम ऐसा नहीं है कि हम ही हैं, हम देख रहे हैं। जब आप उस आइडेंटिटी से होते हैं तो अपने लोगों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उस भाषा में बात करते हैं। तो ये है कि उनकी भी बात करो जिनकी आप हर जगह पॉलिसी में 70% बोलते हो, गांव में रहते हैं, उनकी बात करो। 70% के तो आपकी पॉलिसी में कभी जिक्र ही नहीं होता कि गांव में भी ट्रांसक्वेयर रहते हैं। आप तो एक तरीके से आर्टिफिशियल चीजें बना रहे हो कि लो शहर वाला आर्टिफिशियल गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला आ गया, इस तरीके से। तो इस तरीके से सोच नहीं है। हम भी एक नेचुरल तरीके से है, नेचुरल तरीके से सोचते हैं और नेचुरल तरीके से महसूस करते हैं एक तरीके से। ये कोई बनाने, और मुझे जैसे साथी ने बोला कि कोई ऐसे दलदल भरी जिंदगी में कौन आना चाहेगा, है ना, जहाँ पे जिसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, जहाँ पे हर पल घूर के देखा जाता है, जहाँ पे अनकंफर्ट महसूस कराया जाता है, जहाँ पे सेल्फ डप्ट महसूस कराया जाता है, वो जिंदगी कौन जिए? जिंदगी इसलिए जिए क्योंकि हमारी जिंदगी है, तो उसमें हमें जाना है। तो इस तरीके से तो मुझे लगता है कि खास करके उन्हें जो एंटी कास्ट से जुड़े हुए हैं, इसमें साथ आना चाहिए और इस मूवमेंट को आगे ले जाना चाहिए। हमें सुनना चाहिए, सुना जाना चाहिए और हमें उससे जोड़ना चाहिए आगे ले जाने के लिए लड़ाई में। Thank you so much, Amit, for that very powerful conversation and dialogue with us. As we come to the end of the session, I'm just reminded of two people. जब आप बात कर रही थी तब मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही थी। गेल उमर जब सीकिंग बेगमपुरा की बात करती हैं, तो वो जितने भी एंटी कास्ट यूटोपिया है, बेगमपुरा है, और वो कबीरदास की बात करती हैं, रविदास की बात करती हैं, द काइंड ऑफ, सो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट डीकोलोनाइजिंग की नॉलेज की हम बात करते हैं, तो वी शुड ऑल्सो थिंक कि which knowledge we are going back to, which knowledge system are we referring to when we are saying decolonizing. और दूसरी चीज़ आपने बहुत अच्छी बात करी about suffering, कि suffering से कैसे हम we are more open to how discrimination और violence और शोषण कैसे काम करता है। तो जो community on the suffering end है always knows it, which very much is James Baldwin thing, जब वो कहते हैं कि suffering ही वो bridge है जिससे हम जुड़ते हैं लोगों से। But then what do we do with the knowledge that we have? क्या हम इंस्पेक्ट करते हैं? डू वी कम बैक टू पॉलिसीज, और डू वी ओनली लिमिटेड टू वेरी लेस मीडिया विजिबिलिटी, जैसे कि याशिका ने बात करी थी। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू ये कॉन्वर्सेशन हमारे साथ करने के लिए एंड फॉर गिविंग अस द टाइम। थैंक यू सो मच।